की तारीफ़ और उसकी हम्द करते हैं। और मेरा नाम पादी सलमान यूसुफ और मैं आप सब लोगों को नाने बका यानी मॉर्निंग डिवोशन के इस हिस्से में खुशामदीद कहता हूँ और खुदा की बरकत और उसकी सलामती आप लोगों की ज़िंदगियों के लिए चाहता हूँ। और दोस्तों यकीन करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं। खुदा आप लोगों को इसी तरह कायम दायम रखे और खुश खुर्रम रखे। और आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएँ, दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। कादर मुतलक खुदा, मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा तो हमें बारहा ही मौके फराहम करता है कि हम तेरी बारगाह में आए, तुझे इज़्ज़त व जलाल दें, तेरी तारीफ़ करें। और खुदा आज की मॉर्निंग डिवोशन हम सबों के लिए बरकत और खुदा तेरी हिकमत और दनाई और तेरे फजल का बायस हो, यीशु के नाम में आमीन। खुदा की तारीफ़ हो। और दोस्तों बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही खूबसूरत वक्त है जो खुदा ने हमें बख्शा, यानी अर्ली मॉर्निंग हम खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए उसकी हजूरी में हाजिर होते हैं। और यह खुदा के नाम को जलाल है और ये उसकी परवरदिगारी है कि हम जैसे इंसानों को वो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। और आइए मिलकर खुदा की प्रस्तुति और उसकी ताज़ीम करते हैं। और बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर है, खुदा तरसो आओ सुनो बयान मेरे उत्ते रब ने जो कीते एहसान। और आइए मिलकर क्वायर के साथ खुदा की तारीफ़ और उसकी हम्द करेंगे। और रोज़ की तरह क्वायर हमारे साथ मौजूद है और खुदा की प्रस्तुति और उसकी ताज़ीम में ये ज़बूर गाएंगे। खुदा तरसो आओ सुनो बयान मेरे उत्ते रब ने जो कीते एहसान। खुदा की तारीफ़। हालेलुया। दोस्तों इस खूबसूरत ज़बूर के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदा ने हमें बख्शा, और ताकि हम उसके नाम को इज़्ज़त व जलाल दें और उसी की हम्द करें। और इस वक्त अब वक्त है कि हम खुदा के पाक और ज़िंदा कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ हमारी बहुत ही मोहतरम बहन मिस रुबीना मौजूद हैं और आज हम अपनी बहन के वसीले से खुदा के पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। थैंक यू पास्टर साहेब। आइए खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ें इमसाल की किताब 2 बाब उसकी 6 आयत। क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है
علم و فہم اسی کے منہ سے نکلتے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ اس کی برکت ہو۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب ان کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا جلیل قدوس مہربان آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری حکمت اور دنائی کے لیے۔ اپنے فضل سے ہمیں راستہ کر اور خدا ان بخش دے کہ تیرے پاک کلام پر غور کریں اور خدا ان تیری برکت میں شامل رہیں، یسوع کے نام میں آمین۔ خدا ان کی تعریف اور اس کی حمد ہو۔ اور دوستو تھوڑی دیر کے لیے جب خدا ان کے بزرگ کلام پر غور کرنے کو ہیں تو آپ کی توجہ ایک خاص امر کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ اور آپ نے اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی کتب کو دیکھا ہوگا یا آپ کی سماعتوں سے ان الفاظ کو ٹکراتے ہوئے محسوس کیا ہوگا یا آپ کی نظروں سے ایسا ادب گزرا ہوگا کہ جس کو نیشنلی اور انٹرنیشنلی بیسٹ سیلر کا خطاب دیا گیا ہو۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے تو ایسی بہت ساری کتب ہم نے پڑھی اور دیکھی بھی ہیں کہ جس کو ملکی اور غیر ملکی طور پر بیسٹ سیلر کا خطاب دیا گیا، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کتابوں کی مانگ جو ہے وہ ماند پڑ گئی اور اس کے بعد کوئی اور ان سے بہتر کتاب یا ان سے بہتر ادب جو ہے وہ مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہو گیا اور لوگ پھر اس کتاب کو خریدنا شروع ہو گئے۔ لیکن آج میں آپ کا تعارف ایک ایسی کتاب سے کروانا چاہتا ہوں کہ جو کسی مخصوص سیزن یا چند سالوں سے بیسٹ سیلر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو صدیوں سے بیسٹ سیلر کے طور پر گلوبلی جانی اور پہچانی گئی ہے۔ اس کا حسن و جمال ایسا ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اس کا علم و عرفان ایسا ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب آج تک اس کے علم و حکمت کو چھو تک نہیں پائی۔ شاعرانہ ادب کی اگر میں بات کروں تو شاعرانہ ادب میں ایسا حسن کمال ہے کہ دنیا بھر کی شاعری کی کتب لا کر بھی اس کے سامنے رکھتی جائیں تو وہ بھی کچھ حیثیت نہ رکھیں گی، اور ایک ایک حرف جو ہے وہ کندن کی طرح تایا ہوا۔ اور تاریخ کے مستند ہونے کی بات کروں تو دوستو اس سے زیادہ مستند تاریخ میں مجھے پوری دنیا میں آج تک کہیں دکھائی نہیں دی۔ اور اسی طرح اگر اس کے نبوتی ادب کی بات کروں تو مانو کہ ہزار سال کا زمانہ جو ہے وہ کوزے میں بند کر دیا گیا ہے، اور ایک ایک لفظ جو ہے وہ زندگی کی رمق کو جاری کرتا ہے۔ لیکن دنیا کی تاریخ اس بات کی بھی شاہد ہے کہ اس کتاب کو بہت سارے حاسدوں نے ختم کرنے کی بھی کوشش کی۔ بہت ساری ایسی زندگیاں بھی اس زمین پر جنم لے گئیں کہ جنہوں نے اس پر شدید تنقید کے بان بھی چلائے، ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح سے اس گلوبلی بیسٹ سیلر بک کا وجود اس زمین سے ختم کر دیا جائے۔ لیکن دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ تمام تر حاسدین جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی موت آپ ہی مر گئے، لیکن یہ کتاب جو ہے یہ آج تک گلوبلی اسی طرح سے بیسٹ سیلر کے طور پر جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کا تعارف کتاب مقدس یعنی بائبل مقدس سے کروانا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، وہ زندہ خدا کا کلام کہ جو ایک ایک حرف خدا کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ پر مبنی ہے۔ ایک ایسا خدا کا کلام کہ جو 1600 سال میں 40 مصنفین نے جس کو روح القدس کی تحریک سے تحریر کیا ہے۔ ایک ایسی کتاب اور ایسا کلام کہ جس کی نظیر پوری دنیا میں ہمیں کہیں اور دکھائی نہیں دیتی۔ اور میرے دوستو، جس وقت ہم اس بات کو دیکھیں اور اس پر غور کریں تو خدا کا کلام کیا بات بیان کرتا ہے کہ امثال کی کتاب اس کے دوسرے باب کی 6 آیت کہ علم و حکمت جو ہے وہ خدا کے منہ سے نکلتی ہے اور فہم و فراست بھی اسی سے جاری ہوتی ہے۔ اور میرے دوستو، اس کی علم و حکمت کی بنیاد اور اس علم و حکمت اور فہم و فراست کی نظیر کو اگر میں تلاش کرنا شروع کروں تو کم از کم دنیا میں تو کوئی مجھے ایسا شخص دکھائی نہیں دیتا، بڑے سے بڑا مفسر اور مفکر بھی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جو اس حکمت اور اس جلال کے ادب کو، اس کے پیرائے کو سمجھتے ہوئے اس کے مد مقابل کوئی تحریر کر سکے۔
ये नामुमकिन बात है। क्यों? क्योंकि इसका एक एक हर्फ जो है वो जिंदा खुदा के ज़बान मुबारक से अदा हुआ लफ्ज़ है कि जिसको बाइबल मुकद्दस में तहरीर किया गया है। और मेरे दोस्तों, आज ये एक ऐसा खजाना हमारे पास मौजूद है कि जो शेयर करने से ख़त्म नहीं होता, जिसको जितना ज़्यादा बांटते चले जाएंगे ये उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। समेट लें इस खजाने को, क्योंकि याद रखिए कि ये खुदा ने आप पर बड़ा गहरा फजल किया है। ये खुदा ने आप पर अपना बड़ा गहरा जलाल जाहिर किया है कि अपने मुंह के कलाम को तहरीरी सूरत में आप लोगों तक पहुंचा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये एक ऐसा जलीलुल कद्र अदब है कि जिसका एक नुक्ता और एक शोशा भी झुटलाया नहीं जा सकता। चुनांचे मेरे दोस्तों, इस बेशकीमती खजाने को ना सिर्फ आज समेटें बल्कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुतारिफ करवाएं, क्योंकि ये वो अदब है, ये वो ग्लोबली बेस्ट सेलर बुक है कि जिसके एक एक हर्फ में ऐसी कुव्वत और कुदरत मौजूद है कि जो जिंदगियों को तब्दील कर देती है। और दुनिया की तारीख ये बात बयान करती है कि जो लोग इसको बदलने के लिए निकले वो इसके अल्फाज के बोझ तले खुद ही दब गए और खुद ही तब्दील हो गए। बेशक ये कलाम मुकद्दस खुदा का कलाम यानी बाइबल मुकद्दस है कि जिसकी नज़ीर इस दुनिया में आपको कहीं और दिखाई नहीं देगी। चुनांचे आइए आज इस बाइबल मुकद्दस को लपेट लपाट कर किसी ऊंची जगह पर रखने की बजाय इसको पढ़ें और खुदा के मुंह के अल्फाज से वाकिफ हों, ताकि आपकी जिंदगियां भी तब्दील होती चली जाएं और आपके साथ साथ हजारों लाखों और करोड़ों लोगों की जिंदगियां कलाम मुकद्दस के वसीले से तब्दील हुई हैं और हमेशा होती रहेंगी। तो क्यों ना हम भी अपना अपना हिस्सा इसमें अदा करें और खुदा के कलाम को दूसरे लोगों के साथ मुतारफ करवाने में अपना किरदार अदा करते हुए न सिर्फ अपनी जिंदगी खुदा के कलाम के मुआफिक ढालें बल्कि बहुत सारी जिंदगियां खुदा के कलाम से मुतारफ करवाकर उनकी जिंदगियों को भी तब्दील होने का शर्फ बख्श दें। और आज के कलाम के हिस्से के वसीले से खुदावन आप लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। परवरदिगार आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत किताब के लिए। खुदावन बेशक जो सदियों से ग्लोबली बेस्ट सेलर है और ना इसका मुकाबला कभी माजी में हुआ, ना हाल में है और ना ही मुस्तकबिल में होगा। खुदा अजीम, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें ये किताब मुकद्दस पढ़ने का फजल बख्शा है और इस किताब को पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक भी हमें अता फरमा। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। और आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हम माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों और बहनों के साथ होता रहे, आमीन आमीन। खुदा की तारीफ और उसकी हम्द हो। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही और अब मुझे इजाज़त दीजिए। कल आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। और जाने से कबल आप सब लोगों से गुजारिश है कि ज़रूर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशंस जो हैं वो आप लोगों को आते रहें। और डिवोशन को शेयर करना मत भूलिएगा और आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स आपके होने का एहसास हमें दिलाते रहेंगे। खुदावन आप लोगों को बरकत दे। अपना बहुत ख्याल रखिए। कल फिर अलल सुबह आपके खिदमत में हाजिर होऊंगा इस ईमान के साथ कि आप सब लोग मेरे साथ मौजूद होंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आप लोगों को बरकत दे, आमीन।